I never learned how to ride a bike as a kid. और मुझे यही लगता था कि अच्छा इट्स ऑल्सो बिकॉज मैं ग्लासेस पहनती थी और मैं जितनी शरारती थी तो मेरे ग्लासेस बहुत ज़्यादा टूटते थे और उसके बाद घर में डांट पड़ती थी. सो आई स्टेड अवे फ्रॉम एडवेंचर, फ्रॉम स्पोर्ट्स, फ्रॉम बाइक्स कि भाई इससे तो गिर के यकीनन मेरे ग्लासेस टूटेंगे ही. बट व्हेन यू फेल द फर्स्ट टाइम, कभी डर लगा, जैसे कहते हैं ना कई दफ़ा दिल में डर बैठ जाता है. डिड यू एवर हैव दैट एक्सपीरियंस? नहीं. I'll be very honest, मुझे बहुत ढीठी. I've been sporty all my life. I've been active. My father and mother are from the sports background, so I never feared anything. I was like कि ठीक है, गिरते हैं फिर आप उठते हैं, वही वाली चीज़, क्योंकि वो सुनते भी यही आए हैं बचपन से. अम्मा अब्बा ने यही सिखाया कि बेटा कोई मसला नहीं, गिर गए उठ जाओ, दोबारा से चलो. तो अभी भी I am on the wheelchair, but I know that once I am able to walk, I'll be riding back again. Tell me something. बहुत सारे फैशन आइकॉन्स का तो आपने देखा होगा कि व्हाट्स इन देयर बैग, ये लोग क्या एसेंशियल्स अपने कैरी करते हैं. गज़ल तुम्हारे पास क्योंकि जगह भी लिमिटेड है एंड यू हैव टू ट्रैवल लाइट, बैग में क्या 4 चीज़ें हैं जो ज़रूर होती हैं? 4 चीज़ें. Okay, I do carry a travel kit. Okay. So I do carry sunblock, moisturizer for sure, because when you're going in the rough terrains, you need that thing, and especially in cold weather. And lip balms, lipsticks. I guess 4 things. लिपस्टिक? एक बाइकर के बैग में लिपस्टिक? ये Yeah. कैसे होता है? I do carry lip tints. Those are actually stays for long. So yeah. One of the most surprising experiences that you've had. जैसे कई लोग कहते हैं ना, आप वेकेशन पे जाएं, मुझे सनराइजेस बहुत खूबसूरत लगते हैं एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि इफ़ आई एम एट अ सीनिक लोकेशन मैं ज़रूर सूरज को उभरता हुआ देखूं. तुम्हारे लिए वो एक चीज़ क्या है दैट यू नेवर वांट टू मिस? Sunsets. Sunsets? Yeah, I love wow, we're so sunsets. different. Yeah. Sunrise, sunset. अच्छा. So, Why? वजह? Vajah is because the day is ending, and you just have to sit back, relax, maybe a self-reflection during that time, and you can have a self-talk to yourself, what good you did in the day, what bad happened with you, and you can analyze what you're going to do in the next day. So that's my time actually when I'm watching sunsets. एंड मैं इमेजिन करती हूँ कि जिस तरह की ट्रेन है और आप क्योंकि 2 व्हीलर पे होते हो तो दिन में सफ़र करते होगे, शाम में यू स्टार्ट कैंपिंग, राइट? सो दैट्स अ मोमेंट व्हेन यू सॉर्ट ऑफ लुक बैक एंड से कि अच्छा मुझे सुबह दोबारा करना है. नई जगह पे मुझे तो नए कमरे में नींद नहीं आती. तुम जब कैंप में होती हो नींद कैसे आ जाती है? We carry our own camps and our own sleeping bags. So yeah, it was hard for the first time when we were traveling, but then we got used to it. So I've been traveling since last 4 years now, so I don't face any troubles. And did you ever have any unexpected visitors? जैसे कोई squirrel आ गई या कोई और चीज़ कभी आई है? Nothing as such, but yeah, maybe the wild dogs. There are in the mountain areas. Yep. And were you ever scared of them? No, I love pets, so I'm never scared of any dogs or cats. No. तुम्हारे लिए resilience का मतलब क्या है गज़ल? For me, resilience is देखिए ये है ना कि इंसान resilience जब पैदा होता है ना उसको नहीं पता होता. So once you get into a difficult situation, then you start realizing what resilience is. Then you explore what resilience is. It navigates you, it kind of tells you to push yourself when you're in a difficult situation. Even if you can't do it, it's something in you that's pushing you harder, that, take braver steps for yourself. So for me, resilience is just keep moving and doing the things you love, no matter what happens. मैं बताऊँ शुरू में मुझे लगता था every time I wanted to express myself, I always thought that I was misunderstood. और फिर मैंने एक saying पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि because people can't think, so therefore they judge. And I faced a lot of judgment. यानी as somebody who's in media, मुझे लगता है कि हमारा हर move, people look at it and they have an opinion about it. And I'm sure you've had your own fair share of judgments. तुम्हारे दोस्त, यानी अच्छी बात ये है कि फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन कभी कोई जजमेंटल थॉट, कोई जजमेंटल स्टेटमेंट जिससे तुम ये तो नहीं कहोगी it was heartbreaking, but तकलीफ हुई थी? It was just recently since I've been on bed. So bed bound जब आप हो जाते हो, so you kind of increase weight. So I've been getting this comment a lot कि मोटी हो रही है, and अब तो ये बाइक नहीं चला सकेगी. So the comments that usually people make, they are actually keyboard warriors, they are not actual people behind that. And they do become unkind sometimes. But for me, I've always tried focusing on the positivity. So if I'm getting such comments which are affecting me, what I do is simply hide or delete the comments.
or don't focus on that thing. But you read every comment. I do, of course, Okay. because you know when you are out there in the social world, people are there to comment. Of course, you have a public profile, so you have to go through a lot of things. One of the biggest barriers मुझे लगता है young ambitious लड़कियों के सामने होता है, वो घर का एक common जुमला है जिसमें लोग कहते हैं शादी के बाद। किसी ने तो कहा होगा दुनिया घूमनी है शादी के बाद, बाइक चाहिए शादी के बाद। शादी किस तरह के इंसान से करोगी? ऑफ कोर्स एक लड़की का यही ख्वाब होता है कि शादी करे तो वो अपने फादर जैसे बंदे से करे। तो आई ऑलवेज यू नो आई whenever I see a guy, I see my father in him. If he has those अच्छा, qualities, कहने बेंचमार्क ये होता है कि अबू की तरह का ओपन माइंडेड सपोर्टिव Yes, होना चाहिए, exactly. जेंटल होना चाहिए। एंड अगर कौन सी क्वालिटी है जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा डील ब्रेकर होगी कि भाई ये अगर उसने बात कही ना, ये चलता फिरता सुर्ख झंडा है, ऐसे शख्स से मैं बहुत दूर रहूंगी। I guess dishonesty. Okay, Yeah, that honesty is very important to yes, you. it is very important. Because in a relation, you know, trust is one of the most important things. Then comes the love and everything. Do you think honesty and resilience is what defines real beauty? यानी असल में लोग कभी कभार किसी की हाइट देख रहे होते हैं, शक्लो सूरत देख रहे होते हैं, तुम्हारे लिए real beauty क्या है? Honesty. मेरे लिए real beauty यही है. Just be yourself, you know. Try being honest to yourself and be who you are, you know, because you can shine brighter when you try to be yourself. Don't try to be someone who you are not. वैसे मुझे अभी लेटली लगने लगा है कि जैसे जैसे हम ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस में, प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, देयर सो मेनी थॉट्स एंड मेमोरीज फ्रॉम माई चाइल्डहुड दैट कम बैक। और उस वक्त की मिसाल के तौर पे आपकी पेरेंट्स की हुई सख्ती या कोई बात आज एक नई लाइट में समझ आनी शुरू होती है। लाइक आई टेल यू, आई रिमेंबर यू नो किसी भी कंपटीशन में आई वाज अ डिबेटर थ्रू आउट। तो मैं अगर मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ नहीं मिलता था एंड आई वुड कम बैक, आई वुड बी मिफ्ड, तो कहीं जहन में ख्याल आ रहा होता ना कि ओ ज़्यादती हो गई, यू नो फेवरेटिज्म हुआ है, मुझे नहीं दिया किसी और को दिया। एंड माई मदर ऑलवेज टॉट मी दैट इवन फ्रॉम योर फेलियर्स you learn something, कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिलता है। That whole experience is just not about getting the first prize, but there are so many other things. तुम्हारी कोई ऐसी बचपन की बात जो you know you look back and you think about it a lot? एक ऐसा है वाकया when I started riding cycle. अच्छा, पहले ऐसा ही होता है ना, इंसान साइकिल सीखता है तो पहले छोटे वाले पहिए भी लगे हुए होते हैं, 4 व्हील पे सीख रहा होता है, एंड देन यू स्टार्ट ऑन 2 व्हील्स। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। सो व्हेन आई वाज लर्निंग, आई रिमेंबर आई वाज़न्ट एबल टू बैलेंस माय साइकिल ऑन 2 व्हील्स। तो मैं बहुत गिरती थी। बहुत दफ़ा मेरा ऐसा हुआ कि गिर रहे हैं, फिर अम्मी को बता भी रहे, अम्मी चोट लगी है। अच्छा, बचपन से ही ना अम्मा अब्बा का और अब तक के ये है कि व्हेनेवर देयर इज़ अ फेलियर या व्हेनेवर मैं गिरती हूँ कहीं भी या कुछ, इफ़ आई एम नॉट एबल टू सक्सीड इनटू समथिंग, तो वो जो है ना अम्मा अब्बा का कहना ये है कि बेटा कोई बात नहीं, होता है और उठो, दोबारा से करो। सो यू नो, नॉट गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन हमारे उसमें। तो ये वाली एक चीज़ है कि अम्मा अब्बा ने बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया है। अच्छा, वैसे आमतौर पे जब लड़कियां बाइक प्रैक्टिस कर रही होती है बाइसिकल पे, तो वो घर के करीब ही होती हैं ना, तो जब आप गिरते हैं तो धड़ाम से आवाज़ भी आती है जिस पे रिएक्शन उससे ज़्यादा मज़ेदार होता है कि लोग आके कहते हैं हो क्या हो गया, यू ओके? यू नेवर गॉट दैट फ्रॉम पेरेंट्स, बट येस फ्रॉम पीपल हु वर देयर। वो लोग आ जाते थे उठाने और अब्बा कहते थे उठ जाएगी। तो गज़ल जब एम्बैरस होती हो, क्योंकि मुझे तो सबसे ज़्यादा लगता है कि जब आप गिर जाएं या कुछ ऐसा हो जाए ना, देयर इज़ लाइक दिस वॉक ऑफ शेम कि खड़े होना बड़ा मुश्किल लग रहा था उस वक्त, दिल चाहता है यार मुझे कहीं कोई छुपा दे। हाउ डू यू डील विद दैट? आपको बताना नहीं कि आपको कितनी लगी है। मतलब आप गिर गए हैं और आपका ऐसा एक्ट करना है जैसे हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, हाँ। लेकिन लगी बहुत होती है उस वक्त। एग्जैक्टली। तो वो है कि आपको जस्ट यू हैव टू यू नो कंटेन योरसेल्फ और थोड़ा सा ये कि चलें हो गया। हाँ। बट वो एम्बैरेसमेंट फॉर द टाइम बीइंग होती है, एंड देन लेटर ऑन यू काइंड ऑफ एंजॉय दैट मोमेंट कि ऐसा भी हुआ लाइफ में। अच्छा, अर्लियर इन द कन्वर्सेशन यू डिड से दैट यू नो व्हेन people assume that you're putting on weight, तो थोड़ी सी बॉडी शेमिंग भी हुई। तो ये दिल को जाके लगी किसी दिन भूख हड़ताल की इस बारे में, या उसने कहा देखी जाएगी भाई, आई एम मोर ऑफ मी टू लव एंड केयर अबाउट? बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक यू शुड हैव दैट एक्सेप्टेंस। मैं कहती हूँ कि बॉडी टाइप्स हर किस्म की होती हैं एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे पतला होना है एंड यू नो आई स्टार्ट फोर्सिंग थिंग्स ऑन मी, तो दैट विल eventually deteriorate my health, you know, because I'll be more focused towards looking good, you know,
that's not what I want. I want to be happy. So it doesn't matter if I'm getting fat or I'm getting slim, I'm getting darker in complexion or I'm fair. It matters what makes me happy.